साइड से ले कुछ है क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप में किया था, तब तो हमारे उसमें चल गया था, इस वाले ऑप्शन से जो मैंने यूज़ किया है वहाँ से मैंने किया था, तब तो चल गया था। रदरफोर्ड मॉडल से काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, सभी कुछ बता दिया था, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर, ठीक है। जैसे कि कल हमने क्या नहीं बताया था, द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल, सो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, दिस माइन्यूट थिंग्स, ओके। सो द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल वाज 0.6 micrometer, okay, and the source of the alpha particle was the polonium and thorium. The lead container was there, and the scattering is occurring from the gold foil. So, क्या था? A stream of high energy alpha particle from radioactive source was directed at thin foil. Okay, and the thickness of the foil was 0.6, and thin gold foil had a circular fluorescence जिंक सल्फाइड। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पर जो था वो क्या, ये जिंक सल्फाइड, इस पर की कोडिंग थी यहाँ पर, ठीक है। ये हम आपको कल भी हम आपको बता चुके थे। एंड द रिजल्ट ऑफ द स्कैटरिंग वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स हमने पहले क्या इमेजिन कर रखा था, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कहीं पर भी स्कैटरिंग नहीं होगी और जो भी अल्फा पार्टिकल है वो जाके सीधे स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल से निकलने के बाद उसके फ्रंट में स्ट्राइक करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द मास ऑफ ईच गोल्ड atom in the foil should have been spread uniformly over the entire atom, and alpha particle had enough energy to pass directly through each a uniform distribution of the mass in the distribution of mass। जे थॉमसन ने क्या इमेजिन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, एंड द अल्फा पार्टिकल मस्ट go through the foil because alpha particle has enough energy to pass through the gold foil, but it was expected that the particle would slow down and change directly only by a small angle as they pass through a foil। ये इमेजिन किया जा रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा की इसमें उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। This was the expectation from the J.J. Thomson model. Okay, but what was observed? Most of the alpha particle pass through a gold foil, okay, undeflected। ये भी कल मैंने बताया था आपको कि उसमें से जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। A small fraction of alpha particle was reflected by a small angle, okay. Yesterday I told you the angle of the deflection 0.47 degree। जो भी small amount of particle थे जो डिफ्लेक्ट हुए, they deflected at the angle of 0.47 degree। A very few particle bounced back। ये मैंने कल आपको बताया था कि जो एक पार्टिकल वापस आया, इट मीन्स among 20,000, okay, ये मैंने 2000 बताया था, that was wrong, it is 20,000 bounce back, that is were deflected by nearly 180 degree, means जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, ठीक है। On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusion regarding the structure of atom, ठीक है, that was the conclusion। Most of the space of atom is empty and most of alpha particle pass through the foil, okay, बिना डिफ्लेक्ट हुए वो निकल गए, ठीक है, इसीलिए most of the part of the atom was empty। A few positively charged alpha particle were deflected। The deflection must be due to enormous repulsion force,
okay, due to the enormous repulsion force, okay, because the charge were same, that's why they deflect, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as थॉमसन had presumed। ठीक है, थॉमसन ने क्या प्रिज्यूम किया, दोनों ही चार्ज थे। हम क्या कर रहे थे उसमें, जब कल जे थॉमसन मॉडल पढ़ रहे थे कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो भी ऑल ओवर द एटम में फैला हुआ है और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी ऑल ओवर द एटम में फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, ओके, दैट इज स्टडीड इन द जे थॉमसन मॉडल, ओके। The positive charge has to be concentrated in a very small amount volume that repelled and deflected the positive charge alpha particle, okay। अगर पूरे में फैला होता तो कई जगह से स्कैटरिंग होती, पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कुछ ही पार्टिकल हैं जो डायरेक्टली वहाँ से रिपेल होके आ रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन निकल के आए कि क्योंकि बहुत सारे स्पेस में से ज़्यादातर पार्टिकल निकल गए थे तो वहाँ कुछ नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मीन्स जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज कंसंट्रेटेड एट समवेयर, ओके। Calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligible small as compared to the total volume of the atom। टोटल जो एटम का वॉल्यूम है उससे जो न्यूक्लियस का पार्ट है, उन्होंने उसे न्यूक्लियस का, वो बहुत ही छोटा है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमने एक फुटबॉल यहाँ पर रखी है, ठीक है ना, दैट इज द न्यूक्लियस, और यहाँ से अगर हम 5 किलोमीटर दूर चले जाएं, that is the radius of the atom, ठीक है। अगर हम इमेजिन करना चाहें कि कितना होना चाहिए, ठीक है, उसका साइज कितना होना चाहिए, तो अगर एक फुटबॉल हम यहाँ रखते हैं और 5 किलोमीटर तक चले जाएं, ठीक है, तो वो है एटम की रेडियस, और उतना छोटा सा है वहाँ पर न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power minus 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द nucleus is 10 to the power minus 15 meter. That was the observation done by the Rutherford. मैम जैसे इसको नोट करना चाहें तो? बिल्कुल, वैसे नोट करना चाहें आप, ये सारा एनसीईआरटी का है। आप अगर अभी बुक खोल के देखोगे तो ये सब एक एक लाइन, क्योंकि ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है, तो ये मैंने सारा एनसीईआरटी से ही किया है, क्योंकि वो आपका वही सिलेबस फर्स्ट स्टेप पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हमसे पीपीटी भी ले सकते हैं, और आपके पास बुक तो होगी तो उससे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें जैसे कि इसके पहले मैंने जो रदरफोर्ड का वो डायग्राम दिखाया था वो बुक में इसमें नहीं है, वो मुझे मिल गया तो मुझे लगा कि इसमें और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं तो मैंने ले ली, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ his observation he proposed the structure of the atom, ठीक है, that is the planetary like, जिस तरह से सोलर सिस्टम होता है, ओके। the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region, the very small portion of atom was called nucleus, okay। ये हमने like sun in the solar system, okay, nucleus is centered at the center, okay। The nucleus is surrounded by the electron that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits, okay। Electrons are moving in a circular path, that is called the orbital of the electron. Thus Rutherford model of the atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and electron that of resolving planets, okay। Electron and nucleus are held together by electrostatic force of attraction, okay। We know that both has opposite charge, or they hold by force that is called electrostatic force of attraction। ये इतना उनका मॉडल था, ठीक है, जो उन्होंने प्रपोज किया था।
ठीक है, अभी हम उसके ड्रॉबैक नहीं पढ़ेंगे, अभी हम आगे की स्लाइड में फिर उनके ड्रॉबैक पढ़ेंगे और वो ड्रॉबैक किससे रिलेटेड थे, कौन सी चीज़ों से रिलेटेड थे, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड थे, वो हम देखेंगे। अब है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज द मास। ओके, मास नंबर। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू व्हाट? Proton. And the charge on the proton is equal but opposite to the electron. The number of the proton represent in the nucleus is equal to atomic number. We study that. जनरली हम क्या कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एटॉमिक नंबर। हम अगर जो हमने हमारे दिमाग में रहता है, जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है ना, बट द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द प्रोटॉन्स। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, द फॉर एग्जांपल वी नो दैट इफ सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट आल्सो हैज 11 प्रोटॉन. So the atomic number of the sodium is 11. Okay, and like this hydrogen or other element like carbon has atomic number 1 and yes 1 and 6. atomic number कार्बन का 6 होता है. I want to know something from you. Tell me about the atomic number of halogens. सभी हेलोजेंस के एटॉमिक नंबर बताइए. जैसे फ्लोरीन का 9 होता है और क्लोरीन का 17 होता है और ब्रोमीन का 35 होता है और इसके बाद आता है आयोडीन. तो आयोडीन का 53 और इसके बाद बस इतनी तो है. एक एस्टेटीन है तो उसमें 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा. ये सारी पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों को होनी चाहिए, नीट के स्टूडेंट को तो होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर चाहिए. अगर आप एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी बता सकते हो. अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तो वो आपको सबको पता होना चाहिए. ये आप लर्न करके रखिए, बार बार उसे लर्न करिए, ठीक है. कई मेथड हैं उसको लर्न करने के, उसको देखते रहिए, ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is equal to the number of proton. ओके, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है. अब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन पर है, उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. एंड द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन द इक्वल नंबर. ओके, आफ्टर दैट इट कैन न्यूट्रलाइज द प्रोटॉन. That's why the number of the proton is equal to number of the electron. Okay, the positive charge of the nucleus is due to proton. The mass of the nucleus is due to proton and the neutron. Okay, proton and the neutron represent the nucleus are collectively called nucleons. Okay, proton plus न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द न्यूक्लियन. ओके, अब जनरली आपने देखा होगा जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, ठीक है. तो जनरली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट द आइसोटोप्स. ओके, आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है. ओके, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपने देख लिया है, ठीक है ना. मास इज द व्हाट? नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द एटॉमिक मास. नाउ आइसोटोप्स. व्हाट इज द आइसोटोप्स? फर्स्टली यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड. एवरीवेयर you listen iso. Iso means similar.
सेम। ओके, टॉप मीन्स प्लेस। ओके, मतलब सेम प्लेस, जिस एटम की, जिस एलिमेंट की सेम प्लेस हो। ठीक है, सेम प्लेस का मतलब क्या है? सेम प्लेस का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह सेम हो। ठीक है, जैसे कि कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना, कार्बन के सारे आइसोटोप्स कहाँ होते हैं? एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह तो नहीं दी है ना उनके लिए। ऐसा तो नहीं कहा गया कि कार्बन 12 है तो उसके बाद 13 फिर आ जाएगा, फिर कार्बन 13 आ जाएगा, कार्बन 14 आ जाएगा, ऐसे नहीं कहा गया है ना। सेम ही जगह पर तीनों को रखा गया है। सो एज वी कैन सी the name is indicating that the isotope has the same position in the periodic table. Thus the word isotope means the different isotope of a single element occupy the same position in the periodic table. Okay, all isotope of a given element have the same number of protons. Okay, same number of the proton, but differ in the number of neutron, as you can see in that diagram. Okay, carbon is 12, 13 and 14, and the all carbon isotopes has the similar electron. Okay, and the proton. ठीक है ना, now they are differing in the neutron. Okay, one has 6 neutron, 7 neutron and 8 neutron. ठीक है, अब क्या है कि आपको जैसे पढ़ने का जो तरीका होता है, ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे ऐसे नहीं होंगे कि आप बताइए कि हम कैसे, कि ऑप्शन आपको दे दिया व्हाट इज द आइसोटोप, सिमिलर एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास, ऐसे नहीं। ठीक है ना, वो आपसे पूछेंगे न्यूट्रॉन के बारे में कि बताइए वहाँ पर न्यूट्रॉन की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, लेकिन डिफर कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन में, इसीलिए तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, न्यूट्रॉन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन में, इसीलिए तो उनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेस सेम होती है। क्यों? क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसको न्यूट्रॉन के बेस पर तो नहीं डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना, इसीलिए उनकी पोजीशन सेम होती है। सो all the isotope of a element have the same number of proton in each atom. The number of the neutron differ. The number of the nucleon in the nucleus is the atomic mass. Okay, so अब क्या होगा इसमें? Note that each isotope of a given element has different mass. Okay, डिफरेंट मास होगा उनका। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रॉन तो चेंज हो रहे हैं, तो एक एक बढ़ते जा रहे हैं। जो 12, 13, 14 है वो इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि उनका मास चेंज हो रहा है। मास किसके वजह से चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है, ना कि प्रोटॉन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है हमको, ना कि सिर्फ इतना कि क्या इक्वल है और क्या डिफरेंट है। ये इसके साथ साथ एक्चुअली उसमें क्या अलग चीज है, क्योंकि हमारे पास 3 पार्टिकल है, उनमें से कौन सा है जो डिफर कर रहा है। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6। ओके, ये हमने डायग्राम से आपको सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द आइसोबार। ओके, एंड व्हाट इज द आइसोबार? व्हाट यू मस्ट नो। अभी तक सेम क्या था? अभी तक प्रोटॉन सेम थे और न्यूट्रॉन। हाँ, अभी तक तो क्या होता था कि उसमें एटॉमिक नंबर सेम था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा इसमें? मास सेम रहेगा। ठीक है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होगा। द टर्म आइसोबार ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, आइसो का मतलब हमें पता है सेम। ठीक है ना, पेरोस,
means weight. Okay, barose means weight, similar weight. Okay, isobar have the same number of the nucleon, and which term means that they have the same mass number. Okay, atomic number same, however they differ in the atomic number. Okay, that is the number of protons. अभी तक क्या हो रहे थे? अभी तक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। दो चीजें याद रखो, न्यूट्रॉन कब चेंज हो रहा है और प्रोटॉन कब चेंज हो रहा है। ठीक है ना, जब न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है इट मींस आइसोटोप, जब प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो आइसोबार्स। ठीक है, बहुत इजी है याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा, इसीलिए जो आइसोबार्स की पोजीशन है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, अब एक और चीज, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तभी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, क्या होता है, यही होता है ना कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर दिया गया है, और जैसे जैसे वो दूसरे ग्रुप में जाते हैं या पीरियड में जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी भी उनकी सेम होगी। नाउ ड्रॉबैक ऑफ द, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के जो ड्रॉबैक हैं, अब वो हमें देखना है कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ते हैं वो क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, एक जो एटम को डिफाइन करने की दो थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न थ्योरी, जिसमें वो हम क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो क्लासिकल थ्योरी है कैन अप्लाई फॉर द हैवी एलिमेंट। ओके, हैवी थिंग्स वी कैन से, जिसमें मास ज़्यादा हो, उससे हम क्लासिकल थ्योरी से तो उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे अगर लाइट एलिमेंट है तो हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम क्लासिकल थ्योरी से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसको हम क्वांटम थ्योरी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इन द क्वांटम थ्योरी वी अज्यूम दैट एवरी मटेरियल इज एसोसिएटेड with some waves. Okay, every particle has some particle nature and the wave nature also. In classical theory we assume only the wave. Okay, ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इसी के बेस पर रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके ड्रॉबैक को हम समझ सकते हैं। ओके, रदरफोर्ड रिजेंबल द एटॉमिक मॉडल विद द सोलर सिस्टम। ठीक है, उन्होंने वही जो सोलर सिस्टम में चीज़ें अप्लाई होती हैं वही उन्होंने एटम के ऊपर अप्लाई करी। ठीक है ना, अब वहाँ पर क्या होता है, जब जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यू ऑल नो दैट द प्लैनेट्स हैज सम ग्रेविटेशनल फोर्स that is equal to the g m1 m2 upon r. m1 m2 is the mass of the planet and r is the distance between planet r square है, r2 नहीं है, r square है, वो मुझसे लिखने में वो मिस्टेक हो गई है, ये r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अभी तक अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं जब हम फिजिक्स में जो मास है ना उनके बीच में हम ग्रेविटी को पढ़ते हैं, है ना, तब हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं और यही फॉर्मूला हमारे प्लैनेट्स पर भी अप्लाई होता है। ठीक है ना, जब हम ये वाली इक्वेशन प्लैनेट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो प्लैनेट्स की और सोलर सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ये फॉर्मूला। लेकिन यही चीज़ अगर हम इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर मीन्स एटम हैज so many electrons and the proton also. Okay, so they should have some mass. Okay, m1 m2 and distance between that particles, maybe electron or proton, maybe electron and electron, distance is the r. ठीक है ना,
तो लेकिन इस इक्वेशन से हम उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरह के इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जबकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, इस दोनों को सिमिलर बताया था। ठीक है ना, जो फॉर्मूला हम प्लैनेट्स के लिए यूज़ करते हैं वही हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एटम के लिए, बट इट कैन नॉट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक of the Rutherford model. Okay, the theory can also calculate precisely the planetary orbital and these are in agreement with the experiment measurement. Okay, ये सारी जो planet के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो जो वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है थियोरेटिकली वो रिजेंबल करती है, बट इन द केस ऑफ ये हमने सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की है। ये अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो उन्होंने दोनों को इस तरह से कंपेयर किया, जैसे कि ये वाला सिस्टम है, ठीक है, और वो एटम का सिस्टम है, दोनों को उन्होंने रिजेंबल करके बताया है कि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों के ऊपर सेम प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं। बट ओके, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज बॉडी को, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन अब क्या है, हमें इसे रिजेंबल करना है, तो देखो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द चार्ज बॉडी, ठीक है ना, और हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, दैट कॉज द एक्सेलरेशन, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो सर्कुलेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑर्बिट में घूमते हुए एनर्जी को लूज करना चाहिए, ठीक है ना, और फाइनली उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है ना, और इसको होने में इट विल टेक only 10 to the power minus 8 second to spiral into the nucleus. ओके, इतना समय लगेगा इसे बस उसको न्यूक्लियस तक पहुंचने में, बट दिस नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। Okay, if the motion of an electron is described on the basis of the classical mechanism and the electromagnetic theory, you may ask the since ये सारी चीजें हम बता दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Another serious drawback of the Rutherford model is says something about the distribution of the electron around the nucleus. उन्होंने उनके एनर्जी लेवल्स नहीं बताए, ठीक है, कि ऑर्बिट में तो है लेकिन वो एनर्जी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ठीक है, मतलब ऑर्बिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। एक चीज़ उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ने और नहीं बताई थी कि हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किसी बॉडी को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग बैंड के स्पेक्ट्रा बनते हैं, ठीक है ना। वो स्पेक्ट्रा कैसे बने किसी एलिमेंट से, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है, रदरफोर्ड थ्योरी कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, किसी भी एलिमेंट से का जो भी स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। स्पेक्ट्रा जानते हो क्या होता है? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन। हाँ, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है ना, इट एमिट सम रेडिएशन, ठीक है ना, और वो अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है, और उनके अलग अलग बैंड बनते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है ना, और वो क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है।
अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दें तो आप देखिए, अगर कॉमनली अगर हम बात कहें तो जो रेनबो होता है, ठीक है, दैट इज़ द विजुअल रीजन। उस विजुअल रीजन के अंदर भी हमें अलग अलग कलर के बैंड दिखाई देते हैं ना, ओके। सो रेनबो इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो कैसे होता है। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, और अब फिर इसके बाद उस चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया, इन सारी चीज़ों को बोर्ड ने एक्सप्लेन किया। और उन्होंने किस चीज़ का एक्सप्लेन किया, उन्होंने इन्हीं ड्रॉबैक को एक्सप्लेन किया कि स्टेबिलिटी कैसे होती है, वो कैसे न्यूक्लियस में नहीं गिर जाते हैं, या स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट होता है। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड lie perpendicular to the each other, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ठीक है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ओके। तो उन दोनों के इंटरेक्शन से एक वेव जनरेट होगी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ओके। दैट वेव हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ fields, electric field as well as the magnetic field, okay. So we can say the electromagnetic radiation or wave has the property of both type of the field, electric field and the magnetic field. So and the electromagnetic radiation also waves, okay, wave, okay. So it has the property of the waves also, okay. इसमें वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इंटरेक्शन से हुई है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना। Whenever a charge is placed in the electric or in magnetic field, it experiences certain force acting on it, or if multiple charge are placed, they experience an interaction due to another, ठीक है। ये एक दूसरे की वजह से ये एक इंटरेक्शन को फील करते हैं, जिसको जेम्स मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया, डिस्कवर किया, ठीक है ना। और इसकी और भी चीज़ें एक्सप्लेन करी, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। सो फर्स्टली वी कैन से इट हैज़ वेव प्रॉपर्टी, it has both electrical and magnetic field properties, okay. And also it doesn't need the medium to propagate, ठीक है। जैसे साउंड वेव, ठीक है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती हैं, लेकिन इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। Most usual or most important we can say, or most common example of the electromagnetic radiation is the sun rays, okay. सन रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। जानते हो कि ये कहाँ से आ रही है? स्पेस से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं चल पाती तो वैक्यूम से कैसे आती है, ठीक है। तो ये वहाँ से आती है, तो इट डोंट नीड any medium to propagate, ठीक।